हाय, मैं हूं देव एंड यू आर वॉचिंग बॉलीवुड क्लोज अप. Today, let's talk about a legend who turns a year older on 7th November. To call him versatile would be an understatement. 1960 से लेके 2023 तक, he has entertained audiences with his brilliance in multiple languages as actor, writer, and filmmaker. Tamil, Telugu, Malayalam, Kannada, and Hindi. He has mastered them all. He was the first leading man from the South to have an extensive career as a leading man in Hindi films. I am referring to the genius Kamal Haasan. आज हम बात करेंगे कमल हसन साहब के 5 यादगार हिंदी फिल्मों के बारे में. फिल्म 1, एक दूजे के लिए. Released in 1981, Ek Duje Ke Liye was Kamal Haasan's first Hindi film. It was a tragic love story of the Tamilian Vasu and the Punjabi Sapna. कमल हसन साहब के साथ इस फिल्म में रति अग्निहोत्री और माधवी थी. It was made by K. Balachandar, who was Kamal Haasan's mentor. आपको वो सीन याद होगा जिसमें कमल हसन, जो फिल्म के शुरू में हिंदी नहीं बोल सकते, वो शुद्ध हिंदी में अपने वुड बी इन लॉज के साथ बात करते हैं. एक दूजे के लिए के सारे गाने, which were composed by Lakshmikant Pyarelal and written by Anand Bakshi, were huge hits and the film itself was a blockbuster. Film number 2, सनम तेरी कसम. कमल हसन साहब ने 1990 में एक इंटरव्यू में ये कहा था कि एक दूजे के लिए की सक्सेस के बाद he should have probably done more films which were lighter, not very intense. उन्होंने आमिर खान का एग्जाम्पल दिया था कि कैसे कयामत से कयामत तक के बाद आमिर खान ने दिल जैसी फिल्म बनाई. कमल हसन said that he should have done more films like दिल after the success of his first हिंदी film. लेकिन वैसे नहीं हुआ. He ended up doing a lot of intense films which did not do very well at the box office. But one film in which he essayed a lighter character, which was a hit, was Sanam Teri Kasam. Director Narinder Bedi and producer Barkha Roy's tribute to Nasir Hussain. Sanam Teri Kasam had all the ingredients of the classic Nasir Hussain formula. Mistaken identities, a hill station, and above all, a great musical score by R.D. Burman. कमल हसन साहब played सुनील यानी कि सनी, जो एक सिंगर है और नौकरी की तलाश में है. He meets Nisha, played by Reena Roy. He falls in love with her. और बहुत सारे twists और turns के बाद he runs into Ramlal, his long lost father, which was played by Kader Khan. एंड में सब कुछ ठीक हो जाता है, विलन्स आर डिस्पोज्ड ऑफ एंड ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल. सनम तेरी कसम की और एक खास बात यह थी कि इस फिल्म के लिए R.D. बर्मन को अपने करियर का सबसे पहला फिल्म फेयर बेस्ट म्यूजिक अवार्ड मिला. द सॉन्ग्स कंटिन्यू टू बी पॉपुलर टू दिस डे, जैसे कि टाइटल सॉन्ग कितने भी तू कर ले सितम, हंस हंस के सहेंगे हम, जाने जा, शीशे के घरों में, देखता हूं कोई लड़की हंसी, एंड अदर्स. Film number 3, Sadma. Sadma was a remake of the Tamil film Moondram Pirai. इस फिल्म में श्रीदेवी played Neha Lata, a girl who loses her memory and regresses after an accident. She's trapped in a brothel. वहां उनकी मुलाकात होती है एक स्कूल टीचर यानी कि सोमू, the role that was played by Kamal Haasan. सोमू नेहा लता को उस ब्रॉथल से रेस्क्यू करता है और अपने साथ अपने घर ऊटी में लेके जाता है. He is in love with her, but he keeps reminding himself that he is her caregiver. Subsequently, Neha Lata's parents, who are searching for her, they find her and get her treated. Neha Lata का treatment होता है and she recovers completely, but she ends up forgetting the period between her accident and recovery. वो सब कुछ भूल जाती है, सोमू को भी भूल जाती है. The film ends on a tragic note where Neha Lata is in the train is moving out of the station और कमल हसन प्लेटफॉर्म पे है और बहुत कोशिश कर रहे हैं नेहा लता को याद दिलाने के लिए कि वो क्या क्या करते थे उनका दिल बहलाने के लिए, जैसे एक बंदर का डांस एंड अदर थिंग्स, बट नेहा लता जस्ट डज नॉट रिकॉग्नाइज हिम. इट वाज अ ट्रैजिक एंड टू अ मास्टरपीस. इनफैक्ट सदमा का ओरिजिनल वर्जन मूंड्रम पिरई के लिए कमल हसन साहब को अपने करियर का पहला नेशनल अवार्ड मिला था. फिल्म नंबर 4, गिरफ्तार. कमल हसन साहब ने हिंदी में कुछ मल्टी स्टारर्स भी किए, जैसे कि राज तिलक और गिरफ्तार. गिरफ्तार फिल्म की खास बात यह थी कि इस फिल्म में 3 सुपरस्टार्स हमें नजर आए थे, खुद कमल हसन, रजनीकांत एंड अमिताभ बच्चन.
अब कमल हसन और रजनीकांत ने साउथ में काफी फिल्मों में एक साथ काम किया था, लेकिन गिरफ्तार में वी डोंट सी देम टुगेदर। उनके ट्रैक्स अलग हैं। कमल हसन प्लेड किशन एंड अमिताभ प्लेड करण, हिज लॉन्ग लॉस्ट एल्डर ब्रदर। कह सकते हैं कि गिरफ्तार वॉज अ ट्रिब्यूट टू मनमोहन देसाईज लॉस्ट एंड फाउंड फॉर्मूला। इसलिए गिरफ्तार में मनमोहन देसाई के जो सारे एलिमेंट्स होते थे उनकी फिल्मों में, वो हमें सब नजर आते हैं, जैसे कि द ऑल सैक्रिफाइसिंग मदर प्लेड बाय निरूपा रॉय, जीवन इन अ नेगेटिव रोल, प्रयागराज जो गिरफ्तार के डायरेक्टर थे एंड ही वाज आल्सो द राइटर ऑफ मोस्ट ऑफ मनमोहन देसाईज फिल्म्स, एंड द वन एंड ओनली कादर खान जो गिरफ्तार के विलन भी थे और डायलॉग राइटर भी थे। इनफैक्ट यह कहना पड़ेगा दैट कादर खान एंड हिज शैतानी खोपड़ी वर द हाइलाइट्स ऑफ गिरफ्तार। कादर खान का जो तकिया कलाम था भगवान के भजन से, ये आज भी लोग याद करते हैं। फिल्म नंबर 5, सागर। कमल हसन साहब is someone who has always been very critical of his own performances. एक इंटरव्यू में जब उनसे सागर के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सागर में तो मैंने हैमिंग की थी, ओवर एक्टिंग की थी। Well, let's just say that the audiences did not agree with him. In Sagar, Kamal Hassan played Raja, the man with a heart of gold, who sacrifices his love for Mona, his childhood sweetheart, played by Dimple Kapadia. Even as Mona, that is Dimple, and Ravi, that is Rishi Kapoor, romance and sing songs together, the audience smiles and even cries with Raja. याद कीजिए वो सीन जिसमें राजा अपने आंसुओं को छुपाने के लिए अपने मुंह पे पानी मारता है, एंड हिज परफॉर्मेंस इन दैट इमॉर्टल सॉन्ग सीक्वेंस सच मेरे यार है। कमल हसन साहब को अलग अलग भाषाओं में 19 फिल्म फेयर अवार्ड मिले, बट हिज फर्स्ट अवार्ड फॉर हिंदी वॉज फॉर सागर, वेयर ही वन द बेस्ट एक्टर अवार्ड। आगे जाके उन्हें फिल्म विरासत के लिए बेस्ट स्टोरी का अवार्ड मिला। He had acted in the original version of विरासत, थेवर मगन। तो ये थी मेरी कोशिश to pay a tribute to the genius Kamal Hassan. May he continue to entertain and enlighten audiences in the years to come. Till we meet again, this is Dev signing off from Bollywood. Close up. Goodbye. Radio Nasha.